मेरे साथी मनीष, मिसेज मनीष, शैलेन, सभी चारों मेरे यंग फ्रेंड्स और यहाँ उपस्थित सभी मेहमानगण, पत्रकार बंधु, ये बड़े बहुत ही रेयर ओकेजन है एक जिले के लिए, क्योंकि मुझे याद है कि कई दशकों में एक जिले से एक बच्चा सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ है। और ये बड़ा सौभाग्य है कबूतरनगर का कि यहाँ हमारे चार बहुत ही प्रॉमिसिंग और फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं सभी लोग, ये इनके पेरेंट्स और इनके फ्रेंड्स, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम कि मैंने ये सिविल सर्विसेज क्लियर किया था, आई वॉज योर रैंक। लेकिन अभी मैंने देखा कि कंपटीशन हैज बिकम far tough, maybe 1,000 times tougher than what we used to face in terms of civil services competition, in terms of numbers and in terms of quantity. Surprise when they changed the system and the candidates could not give the answer by way of exclusion. You need to know all the 4 correct answers, then only you can pick up the right answer. It was a surprise for the candidates. So when I talked to Gauri, she was really very disturbed. So then I took her, I went with her. So in between first and second year there is a gap. So then this is a great help for everything. So I took her paper and tried to find out what are the correct answers. To my utter surprise, she did very well. तो जब ये वापस आई, she was very disappointed when she went for the second paper. क्योंकि मेरा तो ये गलती हो गया, वो गलती हो गई, मुझे मालूम था, मैंने ये तुक्का लगा दिया, वो तो तुक्का इज अ बिग थिंग इन प्रीलिम्स, है ना। तो लेकिन जब मैंने इसे बताया, she was really happy and it proved true. तो पहली बात तो it's really a credit and it's a credit worthy for all 4 of you that you have made it. It's not a joke. लेकिन on the other side, I always say, civil services is not difficult. To get into civil services is not difficult. The only thing which is required is your commitment and your truthfulness to yourself. आपको तय करना है कि आपको बनना है, तो फिर बनना है और फिर बनेंगे. God is highly sensitive and highly true to herself. उसको हमें I am the only father who will tell her not to study. मतलब आपको सारे पेरेंट्स कहते हो तू पढ़ती नहीं, पढ़ता, मैं कहता हूँ तू पढ़ती ज्यादा मत पढ़ा. I always dissuaded her not to study. And then in civil service, it's not the intelligence and knowledge which counts. It's the way you present it. और अभी जो हो गया इसमें तो प्रेजेंटेशन और कंप्लीशन ऑफ पेपर मीन्स में अगर 2 काम आपने कर लिए then you are through. तो I would not say anything more other than that the journey for these children have started now. So now it is a test of their honesty, their integrity, their hard work and their application of mind, wisdom. Because at every moment you will face the challenge in terms of how to help people, challenge in terms of how to deal with a particular situation, challenge in terms of how to deal with the stress, pressure groups, and of course different kind of diversified situations where sometimes you will feel lost, that how to come out of it. So my advice would be just have faith in Almighty and unadulterated faith in the God, because and always see God in the poor person. I have always have this concept of daridra narayan. अगर आपको भगवान को देखना है तो गरीब आदमी में देख के अगर आपने उसकी मदद कर दी, then you need not to pray in the temple. आपको फिर भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं. So always keep, as Gandhi ji said,
that last man in front of your eyes. And whatever you could do, you know मनीष, मैंने हमेशा ये कहा कि मैं अगर नियम तोड़ूंगा किसी के लिए तो सबसे गरीब आदमी के लिए। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया डीएम साहब का, मनीष का और शैलेंद्र का कि मुझे भी यहाँ मौका दिया इन लोगों से मिलने का, और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड वी हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू बिकॉज द फ्यूचर लाइज इन योर हैंड्स। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सुनना सर हम लोगों को हमेशा प्रेरणा देता है, और आप अगर बहुत देर तक भी बोलते रहे तो हम दुनिया भर की सैर करके लग्जूरियस होटल्स में रह के नहीं मिल सकती। जो खुशी आप एक हैंडीकैप आदमी की मदद करके पा सकते। सो वर्क फॉर योर हैप्पीनेस। अब वो कैसे मिलेगी, इट्स ए बिग क्वेश्चन, इट्स नॉट इजी। एज ए सिविल सर्वेंट आप लोग 3 तरीके के काम करोगे। लाइन फंक्शंस, जिसमें यू विल टेक डिसीजंस। बहुत सारे मसले आएंगे जहां आपको निर्णय लेना होगा, फाइलिंग करनी है कि नहीं करनी है। आईपीएस ऑफिसर, इसको ये ग्रांट सैंक्शन करनी है नहीं करनी है, कॉन्ट्रैक्ट होना है नहीं होना, सो लाइन फंक्शन। दूसरा सबसे बड़ा आपका काम है स्टाफ फंक्शन, where you will give advice to your superior officer or superior functional. It may be a political executive, but it may be a bureaucratic executive. Chief Minister को आपको एडवाइस करनी, Prime Minister को आपको एडवाइस करनी। That's your second function. And third function आपका है flywheel function. जब इलेक्शन होते हैं तो सारा सरकार आपके हाथ में होती है, कोई पॉलिटिशियन का कोई रोल नहीं। Because the system knows कि दिस इज वेयर ड्यूरिंग द इलेक्शंस। सो ये तीसरा फंक्शन है। Now what should you keep in mind while performing these functions? That is most important. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आपके हर पल में तमाम बार मौके ऐसे आएंगे जिंदगी जब आप क्या यार इतने फैन फेयर से आईएएस में आए थे, बिल्कुल टू हेल्प विद इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों आ गए हम इस नौकरी? And this is where your commitment comes into play. You know, मैं हमेशा एक उदाहरण देता था कि जब तो स्प्रिंट में पार्टिसिपेट करता है, जब हम दौड़ में भाग लेते हैं, कई ज्यादातर अरे यार छोड़ो यार कौन इस पसीने, जो रुक गया वो मर गया। जिसने इस भावनाओं को ओवरकम कर लिया कि नहीं भाई ये तो पूरी करनी है, हिल गया। तो एक तो ये है कि हतोत्साहित नहीं होना। बहुत मौके ऐसे आएंगे, कभी आपका बॉस खराब मिलेगा, कभी आपका सबऑर्डिनेट खराब मिलेगा, कभी आपका गवर्नमेंट में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, कभी आपका लोकल मिनिस्टर खराब होगा। बट दैट शुड नॉट डिटर यू, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज योर जॉब एंड यू आर पेड फॉर दैट। तो जब भी आपको एक डिसीजन लेना हो कोई, तो अगर एक चीज आप ध्यान में रखोगे तो मुझे नहीं लगता कोई डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल। और वो एक चीज है कि उसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। They should not cease to a sister, brother or daughter or father of anybody. You cease to belong to a particular area. कि आप यूपी के हो, आप बिहार के हो, राजस्थान के हो। No. You cease to be a woman or a man. You are only officer. Officer meant for that particular job, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करा। तो अगर आपने अपना पर्सनल इंटरेस्ट अपने ऑफिशियल इंटरेस्ट से अलग रखा, यू कैन टेक एनी डिसीजन ऑन दिस। क्यों आजकल मैं सोच रहा हूं कि अधिकारी डिसीजन नहीं लेते, एक बड़ी भारी शिकायत है, बिकॉज दे वांट टू सेव देमसेल्व्स, बट दैट इज नॉट द राइट वे। एंड इसके लिए बस एक ही चीज जरूरी है, इफ दैट इज देयर, जैसे तो फिर और किसी चीज की जरूरत है, एंड दैट इज इंटीग्रिटी, जस्ट वन थिंग, बिकॉज एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम दैट। वो अगर यहाँ पे है इंटीग्रिटी ऑफ थॉट्स है, इंटीग्रिटी ऑफ मनी इज वेरी स्मॉल, पैसे का बेईमानी तो बहुत छोटी चीज है, विचारों की बेईमानी बहुत खतरनाक है।
क्योंकि अगर विचारों में बेईमानी हुई तो फिर भगवान ही मान। तो वॉरेन बफेट कहता है ना कि अगर तीन चीजों में सेलेक्ट करना है, अगर मैं किसी आदमी को रिक्रूट कर रहा हूं और मुझे 3 चीजों में से कौन सा आदमी सेलेक्ट करना है, 3 चीजें क्या है? इंटेलिजेंस, हार्डवर्क और इंटीग्रिटी। तो मैं इंटीग्रिटी वाले को पसंद करूंगा, क्योंकि अगर आपने इंटेलिजेंट और हार्डवर्क वाला आदमी बेईमान पसंद कर लिया तो आपको लूट लेगा, चूना लगा देगा, पूरी बिजनेस को डुबा देगा। सो जस्ट इंटीग्रिटी एंड नो पर्सनल इंटरेस्ट। बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं विच वी कैन शेयर लेटर ऑन, बट इज माई सिंसियर एडवाइस दैट कीप द नीडी पर्सन इन फ्रंट ऑफ योर आईज। बहुत सारे मौके आएंगे जब आप ये नहीं समझना क्या निर्णय लें, दोराही पे खड़े होते हैं। हाउ वुड यू डिसाइड? 3 थिंग्स अगेन, सी द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नियम क्या कहता है,